Good afternoon, students. Today we are going to start next topic of this chapter, chapter number second, globe latitudes and longitudes. And this is our lecture number second. So let's start. So students, so far we studied about the latitudes. Okay. So in our previous lecture, as we know by now, our Earth is flattened slightly by the poles, and hence the shape of the Earth is described as a joint. Okay. So globe is a miniature model of the Earth. You know that in our previous lecture we studied about this, na? Ki globe is a miniature model of the Earth, and globes are of various types. There are big size. Yes, there are big size which are not handy, and there are small size pocket globes. There are globe-like balloons which are flat when required and are highly portable. Globes can be rotated on its axis, and they are not fixed. Countries, continent, and oceans are correctly demarcated on the globe. Okay. So it is quite difficult to describe the location of a place on a spherical structure like the Earth. For this purpose, certain points and lines are needed for reference. So there is a needle which passes through 2 points on the globe. It is fixed through the globe in a tilted manner. So the 2 points through which the needle passes are two poles, the North Pole and the South Pole. Okay. So this needle is known as the axis. And the axis of the Earth is an imaginary point. So the globe can be rotated on this point, just like the Earth rotates on its axis from west to east. So the equator is an imaginary circular line which passes through the center of the Earth, encircling it and dividing it into two equal halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. And parallel circles from the equator up to the poles and parallel to the equator are called latitudes. So they are measured in degree. So the equator is a 0 degree latitude. The distance of each pole from the equator is 1/4 of the Earth's circumference. Hence, the distance between the equator will measure 90 degrees. Latitudes parallel to the equator on the northern hemisphere are called the northern latitude, and the latitude in the southern hemisphere is called the southern latitude. Okay, so now the next topic is important parallels of latitude. Today we will discuss the important parallel of latitude. Yes, so important lines of latitude. So there are four important lines of latitude. There are four important lines of latitude. First is Tropic of Cancer is situated at 23.5 degrees north in the northern hemisphere. Okay, you can see in this picture. First is Tropic of Cancer. Yes, this one is Tropic of Cancer. First is Tropic of Cancer, and it is situated at the 23.5 degree north in the northern hemisphere. Okay, and the Tropic of Capricorn, this one, Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn is situated at 23.5 south. ठीक है, 23 and
half degrees south in the southern hemisphere. Third is Arctic Circle. This one, Arctic Circle. So Arctic Circle situated at 66.5 degree north in the northern hemisphere. And fourth is Antarctic Circle. Antarctic Circle situated at 66.5 degrees south in the southern hemisphere. Okay, so students, besides the equator zero, the North Pole 90 degree north and the South Pole 90 degree south. Okay, we have already studied about this 90 degree north and 90 degree south. So there are four important parallels of latitude. First is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer 23.5 degree north in the northern hemisphere. Second is Tropic of Capricorn 23.5 degrees south in the southern hemisphere. Third is Arctic Circle at the 66.5 degree north of the equator. And fourth is Antarctic Circle at the 66.5 south of the equator. ओके सो हम इनके बारे में अभी स्टडी करेंगे यहाँ पर, मतलब कि ये जो हमने हमारी फोर इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने लैटिट्यूड की बताई है, तो इनके क्या रीजन है, इनको क्यों हमने ये फोर लाइन, हम एक इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड्स जो है हम इनको इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों कहते हैं. इसका मेन रीजन क्या है कि जो यहाँ पर हमारे पास जो सन रेजेस होती है, ठीक है, जब सन की रेज हमारी अर्थ के ऊपर पड़ती है तो उस जो हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट जैसे जैसे एरिया में किस तरीके से उन एरियाज में जाती है, उन हीट की वजह से ये कुछ जो हमारे जो ये फोर लाइंस हैं जो हमारे पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. तो इसी वजह से ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट फोर लाइंस हमारी बनती हैं. इन्हीं को हम अब डिस्कस करेंगे आगे. So now the topic is heat zones of the earth. Yes, so the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ. ये इसीलिए मेन, जैसे अभी आपने पीछे जो फोर इंपॉर्टेंट लाइंस लैटिट्यूड की पढ़ी हैं वो इसीलिए ही हम लोगों ने स्टडी की है, इसीलिए, और वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेन जो है ना ये हीट जोन की वजह से जो यहाँ पर जो सन रेज जो पड़ती है हमारे ग्लोब के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर, और किस तरीके से हीट अलग अलग एरिया में कैसे हीट पड़ती है, कैसे हीट वो ऑब्जॉर्व होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है उन लाइंस को इम्पोर्टेंट, उन एरिया को इम्पोर्टेंट माना गया है. तो यहाँ पर हमारे पास हीट जोन है. देखिए आप लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. फर्स्ट ये देखिए इक्वेटर, यहाँ पर आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये वाला जो एरिया है सारा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, इसको हम बोल रहे हैं टोरिड जोन. ये हमारे पास क्या है, टोरिड जोन. ओके, उसके बाद जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक है, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल. ये जो आपके पास ये वाले जो एरिया है, ये येलो वाले, इन्हें हम बोलते हैं क्या, टेम्परेट जोन. दिस इज टेम्परेट जोन. और जो लास्ट में आपके पास जो जब आप पोल के पास चले जाते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास जाएं, तो यहाँ पर आप देखिए अंटार्कटिक सर्कल इन नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल है नॉर्थ पोल में, और अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल. ठीक है, आर्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल. ये वाले जो एरिया है ये आपके एरिया होते हैं फ्रीजिड जोन. फ्रीजिड जोन. अब हम इनको देखेंगे कि क्यों हमने इन्हें इन तीन जोन में डिवाइड किया है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन. So the midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn.
So this area therefore receive the maximum heat and is called the torrid zone. Actually students, क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच के जितने भी सभी हमारे जो है लैटिट्यूड्स हैं, उन पर सन जो रेजेस होती है ना, सन की जो रेजेस है, सन है वो एक ईयर में वंस अ डे, यानी कि एक एक बार में दोपहर की टाइम पर सिर के बिल्कुल, हमारे जो सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, बिल्कुल सिर के ऊपर, ये साल में एक बार आता है। तो या इसीलिए इस एरिया में सबसे ज्यादा हीट इस एरिया में मिलती है, इस एरिया में को मिलती है सबसे ज्यादा हीट, किससे? सन से। और इसीलिए इस एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, आपको ये पिक्चर्स दिखाते हैं हमको। यस, लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर दिस इज आवर सन, ओके, दिस इज आवर सन। और ये देखिए कि ये जो आपके पास जब सन की रेज जो पड़ रही हैं, अब जब ये हमारा क्या है? अर्थ, ठीक है, ये हमारा प्लेनेट अर्थ है। और जब ये सन की जो रेज पड़ रही हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ से जब सन की रेज यहाँ से अर्थ के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है इस एरिया में। ये जो आपके पास क्या है, जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो ये वाला एरिया है, इस एरिया के ऊपर सीधी क्या पड़ती है? डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है सन की। और जब इससे ग्लोब से आप क्या करें, जैसे जैसे ये इस एरिया से आगे की तरफ जाती है, इधर आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आपके पास आर्कटिक सर्कल पर जाओगे, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से यहाँ पर आप कहाँ जाओगे? एंटार्क्टिक सर्कल पर जाओगे। तो वहां पर ये, यहाँ पर जो सनलाइट होती है ना, वो टिल्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी तिरछी में होनी, डायरेक्ट नहीं पड़ती है सनलाइट, ये टिल्ट होनी शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे टिल्ट होकर आएंगी आपके पास। और जैसे जैसे ये और ज्यादा उधर जाती है, तो और ज्यादा टिल्टेड होती चली जाती है। और आप कभी नोटिस करें कि जितना ज्यादा सन की रेज आप पर डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वहां पर आपको हीट सबसे ज्यादा लगती है, सबसे ज्यादा गर्मी आपको लगती है उस टाइम पर। और जब सन रेज आपको क्या करती हैं, आपको डायरेक्ट ना मिलकर आपको एक टिल्टेड वे में मिलती हैं, तिरछे रूप में मिलती हैं, तब आपको वहां पर हीट, आप आपको हीट जो होती है, गर्मी जो है वो कम लगती है। तो यहाँ पर जो ये एरिया है, इन एरिया के अंदर क्योंकि जो सनलाइट्स होती हैं, वो डायरेक्ट ना जाकर लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, यानी सनलाइट की तरफ से लो एंगल से आती है ये सनलाइट, टिल्टेड होकर आती है। तो इसीलिए यहाँ पर हीट इन एरिया के अंदर जो यहाँ पर इस वाले एरिया में जाए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है आपका, इस एरिया में टिल्टेड होकर जा रही है। और अगर और ज्यादा ऊपर पोल की तरफ चले जाए, तो वहां पर जो सन लाइट होती है वो और ज्यादा कम पहुंचती है, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 जोन आपके बनाए गए हैं। यस, सो यहाँ पर जो आपके पास, क्योंकि जो आपके पास जो मिड वाला एरिया होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, वहां पर साल में एक बार, वंस अ ईयर, साल में एक बार आपके पास जो सन होता है, वो बिल्कुल सिर के ऊपर आता है, और वहां पर सबसे ज्यादा हीट इस एरिया में मिलती है, मैक्सिमम हीट रिसीव करते हैं इस एरिया में, इसीलिए इनको बोलते हैं टोरिड जोन। Okay, now the next is the midday sun. The midday sun never shines overhead on any latitude behind the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. So the angle of sun rays goes on decreasing towards the pole. So as such the area bounded by the tropic of Cancer and the Arctic circle in the northern hemisphere, and the tropic of Capricorn and the Antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature, and these are therefore called temperate zone. अब यहाँ पर आप देखें, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें, तो ये जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बाद किसी भी लैटिट्यूड पर, किसी भी लैटिट्यूड के ऊपर मिड डे सन जो होता है ना, आपका दोपहर का जो सन होता है, मिड डे सन कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कभी भी ये इसके ऊपर नहीं आएगा. सो द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स, टूवर्ड्स द पोल्स. तो इसीलिए क्या होता है, जब पोल्स की तरफ जो सनलाइट होती है वो टिल्ट हो जाती है, टिल्टेड होती हैं. तो इसीलिए आपके पास क्या होगा, टिल्टेड होने की वजह से क्या होगा ये, कि एज सच एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो इसीलिए अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्दर्न जो आपके पास ये क्या है, फुल सेकेंड आपके पास अंटार्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल, उसके अंदर ये यहाँ तक ये बाउंडेड होती है. द एरियाज बाउंडेड बाय द, जो एरिया बाउंड है किस किस के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल में वाला जो एरिया है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, है मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर. तो वहां पर आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा, यानी आपको वहां पर बहुत ज्यादा हीट नहीं मिलेगी, मीडियम आपके पास वहां पर टेम्परेचर रहेगा. So these are therefore called temperate zone. इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, temperate zone. Okay. Now the next is areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere. अब जो एरिया किस किस के बीच में लाई कर रहा है, आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आर वेरी कोल्ड. ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि यहाँ पर तो जो सनलाइट होती है वो बहुत ही कम पड़ती है, बहुत ही कम पहुंचती है. सो इट इज बिकॉज हियर द सन डजंट अराइज मच अबव द होरिजोन. तो क्योंकि यहाँ पर जो सन होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, ठीक है, यहाँ पर सन बहुत ज्यादा ऊपर राइज नहीं हो पाता है होरिजोन से. सो देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग. इसीलिए जो सन की रेज होती है वो हमेशा स्लांटिंग रहती है एंड प्रोवाइड लेस हीट, और वो लेस हीट प्रोवाइड करती है. सो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रीजिड जोन और वेरी कोल्ड. इसीलिए इनको फ्रीजिड जोन और या फिर आप वेरी कोल्ड फ्रीजिड जोन बोलते हैं. ओके, तो लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर सन इज हियर. ओके, ये जो आपके पास देखिए डायरेक्ट जो है सनरेज पड़ रही है किस वाले एरिया के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. उसके बाद अगर आप इधर जाएं, अगर इस वाले एरिया में जाए या इधर वाले एरिया में जाए, आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पोल साउथ पोल की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, तो आप देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे जितनी जितनी दूर जाते जाएंगे वैसे ही सनरेज आपकी और ज्यादा टिल्ट होती चली जाएंगी, और यहाँ पर आके पोल पे आके इतनी ज्यादा टिल्ट हो जाती है कि वहां पर सन की रेस जो है वो जा ही नहीं पाती, बहुत कम जाती है. इसीलिए हीट वहां पर बहुत, वहां पर जो गर्मी होती है वो नहीं होती, और वहाँ वो हमेशा फ्रीजिड जोन रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा उस एरिया में रहता है वो एरिया. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लुक एट दिस पिक्चर्स. देखिए इस पिक्चर में आपको लॉन्गिट्यूड कैसे दिखा रहे हैं, ये देखिए ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है. ये लैटिट्यूड में आपके पास क्या था, लैटिट्यूड में आपके पास ऐसे पैरेलल पैरेलल टू इक्वेटर ऐसे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, लेकिन लॉन्गिट्यूड के अंदर आपके पास क्या होती है, वर्टिकल, इस तरह की लाइन होती है वर्टिकल. ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए ऐसे आपको ये लॉन्गिट्यूड बनाकर दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से नॉर्थ पोल से, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपके पास ये ऐसे क्या बनाए जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूड बनाए जा रहे हैं. तो लॉन्गिट्यूड्स all meet at the north and south pole. They form orange slice. आप कभी भी देखें कि जो ऑरेंज आप जब ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज क्या होता है, उसके अंदर जो स्लाइस होती है वो लंबी आपकी, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग निकलती हैं, ऊपर एक पोल नीचे, ऊपर के पोल से नीचे के पोल तक. यानी अगर आप ऑरेंज लें तो ऊपर का आपका नॉर्थ पोल होगा, नीचे का आपका साउथ पोल होगा. सो नॉर्थ से साउथ पोल से पूरी आपकी एक स्लाइस निकलती है ऑरेंज की. तो जैसे कि लाइक ऑरेंज स्लाइस की तरह ये है. सो दे फॉर्म ऑरेंज स्लाइस sections of the earth. Okay, so yes, so what are longitude?
So to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. Yes, student, what are longitudes? तो अभी हमने लैटिट्यूड करा। लैटिट्यूड में हमने देखा कि किस तरीके से लैटिट्यूड में हम लोगों ने जब इक्वेटर को 0 डिग्री लेकर हम इक्वेटर से हमने पैरेलल लैटिट्यूड बनाए, नॉर्थ पोल की तरफ और नीचे साउथ पोल की तरफ, और उनको हम किस में मेंशन करते हैं? डिग्रीज में मेंशन करते हैं। ओके, यहाँ पर जब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस, it is necessary to know something more than the latitude of that place. एक्चुअली हमें लॉन्गिट्यूड को भी समझने की जरूरत क्यों है? कभी भी आपको कोई भी प्लेस है, ठीक है, अगर आपको एक प्लेस की पोजीशन को फिक्स करना है, तो स्टूडेंट ये मान के चले कि जब आपको एक प्लेस की पोजीशन को फिक्स करना हो, तो सिर्फ लैटिट्यूड के पता होने से, ठीक है, अकेले लैटिट्यूड से आप लोग एक प्लेस की पोजीशन को क्या नहीं फिक्स नहीं कर सकते। आपको उनके लिए लॉन्गिट्यूड का पता होना जरूरी है। अभी हम आगे एक एग्जांपल लेंगे जहां से आपको क्लियर होगा कि क्यों ये जरूरी है। तो longitude, to fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. कि किसी भी प्लेस की लोकेशन को बताने के लिए उस प्लेस का लैटिट्यूड के अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है। तो यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा, देखिए अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहां एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। So you can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean. ओके, ये हम दो ले रहे हैं, कौन कौन से? एक हमने लिया है टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन, और सेकंड इज आपके पास Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. वो सेम लैटिट्यूड के ऊपर है। सेम लैटिट्यूड कौन सा है? 20 डिग्री साउथ। अभी मैं आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी दोनों, कि टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशन पर है, और जो आपके पास इंडियन ओशन के अंदर आपके पास क्या है? इंडियन ओशन में आपका मॉरिशस आइलैंड है। दोनों ही सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। बट नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to the South Pole. And these lines of references are called the meridian of longitude. अब यहाँ पर दोनों के दोनों 20 डिग्री साउथ पर है। सो उनकी सही लोकेशन जानने के लिए ये पता करना जरूरी होगा कि जो हमारे पास नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल को जोड़ने वाली, ठीक है, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को जोड़ने वाली जो रेफरेंस लाइंस हैं, उनसे ईस्ट और वेस्ट की ओर इन प्लेसेस का डिस्टेंस कितना है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो भी हमारी रेफरेंस लाइंसेस हैं, वो कौन से हैं? दीज लाइंस ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड, और ये जो रेफरेंस लाइंस होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए आप ये देखिए, ये आपके पास क्या है यहाँ पर? ये देखिए आपके पास है मॉरिशस, ये आइलैंड, ये आपके पास कहाँ पर सिचुएटेड है? ये 20 डिग्री साउथ पर, 20 डिग्री साउथ पर। ओके, ये आपके पास मॉरिशस है, और ये आपके पास यहाँ पर है टोंगा आइलैंड। ये आपका पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड, और दूसरा जो मॉरिशस है, ये आपके पास मॉरिशस आइलैंड, ये आपके पास कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में। लेकिन दोनों के दोनों आपके 20 डिग्री, ये देखिए ये आपके पास इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इक्वेटर है, 0 डिग्री पर इक्वेटर है। इससे नीचे इधर यहाँ वाले एरिया में, इस वाले में, यहाँ आपके पास ये ना 20 डिग्री साउथ पर ही सिचुएटेड है। यानी दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड के ऊपर 20 डिग्री साउथ, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, ये आपके पास 20 डिग्री साउथ है, ठीक है, 20 डिग्री साउथ है, और यहाँ पर ये 20 डिग्री साउथ पर टोंगा है। दोनों सेम पर सिचुएटेड है। अब हमें क्या पता, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो मॉरिशस और जो टोंगा है,
वो एक्चुअली में कहाँ पर इनकी लोकेशन है। तो उसके लिए हमें किस चीज का पता होना चाहिए, ये जो आपके देखिए यहाँ पर ये जो आपके सीधे सीधे देख रहे हैं ना लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड है नॉर्थ पोल से इधर नीचे साउथ पोल की तरफ, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से लॉन्गिट्यूड से आकर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये देखिए जो आपका मोर्टिसिस है ये यहाँ पर 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट पर ये लैटिट्यूड है, और इससे भी अगर ये थोड़ी सी इधर जाए तो यहाँ पर कहाँ पर हो गया, ये ईस्ट के अंदर है, ये ईस्ट में 60 डिग्री ईस्ट के आसपास जो आपके पास ग्लोब में देखे तो एग्जैक्ट आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चलेगा कि कौन सी डिग्री ईस्ट पर होगा मोर्टिसिस। और इधर अगर हम टोंगा की बात करें तो टोंगा ये देखिए ये आपका 180 डिग्री के ऊपर, नीचे आप देखें तो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री का ये लॉन्गिट्यूड है, तो इसके इधर ये ईस्ट या वेस्ट होगा तो एग्जैक्ट हमको वर्ड हमें मैप पे जाके पता चलेगा यहाँ पर, तो वहां जाके हम लोग इसकी सही सिचुएशन को, सही लोकेशन को हम पता लगा सकते हैं किसकी हेल्प से, लॉन्गिट्यूड की। सो हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों की जरूरत होती है, दोनों हमारे लिए नेसेसिटी है किसी भी लोकेशन को, किसी भी प्लेस को सिचुएटेड करने के लिए। और आप बड़ी आसानी से उनकी लोकेशन पता लगा सकते हैं अगर आपके पास लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का पता है। ओके, so and the distance between them are measured in degree of longitude, and each degree is further divided into minutes and minutes into second. So they are semicircle and distance between them decreases steadily polewards until it becomes at the zero pole where all the meridian meet. अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि these lines of references are called the meridian of longitude and the distance between them, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, उनके बीच के डिस्टेंस को आप डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में आप मेजर कर सकते हो। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, जो हर एक जो आपकी डिग्री होती है ना, हर एक जो डिग्री है यहाँ पर लॉन्ग, जैसे ये आपके लॉन्गिट्यूड है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये लॉन्गिट्यूड आपको दिख रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं आपके, तो हर एक जो डिग्री के लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ पर हर एक डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया जाता है आगे। सो ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, हर एक डिग्री जो है वो आगे मिनट्स में डिवाइड होती है, एंड मिनट्स इनटू सेकंड, और हर मिनट आगे सेकंड्स में डिवाइड किया जाता है। सो दे आर सेमी सर्कल, देखिए सेमी सर्कल होंगे ना क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो ये कभी भी पूरा सर्कल नहीं होगा। लैटिट्यूड हमारे पूरे क्या होता है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं क्योंकि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनाए जाते हैं, इसीलिए ये हमारे चारों तरफ बनते हैं इस तरह के सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमारे पूरा सर्कल नहीं होता, ये हमारा सेमी सर्कल होता है। So these are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the pole. अब आप देखोगे कि ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये जैसे जैसे आप ये कहाँ जाओगे, जैसे जैसे आप यहाँ से देखो नीचे से, ये आपका नीचे से पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इक्वेटर से जैसे ऊपर जाए पोल की तरफ आप जाते हैं, पोल की तरफ आते आते ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ आते आते ये जो इनके बीच का, इन लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना, डिक्रीज होता जा रहा है इनके बीच का डिस्टेंस। सो ये जितना भी डिस्टेंस होता है इन सेमी सर्कल्स के बीच का, वो पोल की तरफ आते आते, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते जाते ये डिक्रीज हो जाता है एंड इट बिकम जीरो, और ये पोल के पास आकर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास आकर ये कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आकर इट बिकम्स 0, ये 0 बन जाएगा एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहां पर देखिए आप यहाँ पर सारे मेरिडियन आकर, आपके पास सारे मेरिडियन आकर इस नॉर्थ पोल के ऊपर मिल रहे हैं, तो नॉर्थ पोल के ऊपर ये सभी मेरिडियन आके मिल गए और यहाँ पर ये बन गया 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री से आगे ये क्या बन जाती है, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कहाँ तक जाते हैं ये 180 डिग्री तक जाते हैं। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ पोल से नीचे यहाँ पर 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर।
तो इस तरीके से हमारे पास हम लॉन्गिट्यूड को बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड